morning. Today we are going to do the story of a different bee. A different bee. A different bee मतलब मधुमक्खी होती है ना, जो हमें शहद देती है. Okay, it gives us honey, right? उसको इंग्लिश में bee बोलते हैं. Alright, and this is a story about a very different little bee. Okay, so let's go. एक बार क्या था, once upon a time there was this queen bee. queen bee मतलब जो queen bee होती है ना, वो क्या करती है, queen bee thousands and thousands बहुत सारे बच्चे देती है. ओके, अब जब भी कोई मधुमक्खी का छत्ता देखो ना, तो ऑलराइट देयर इज ओनली वन क्वीन बी. क्वीन बी जो रानी होती है वो एक ही होती है. ओके, एंड उसके हजारों बच्चे होते हैं, thousands of babies वो देते हैं. ओके, ऑलराइट. So once upon a time there was this queen bee, okay, and one of her babies was little Tina. Okay, ये मम्मी है and ये baby bee है. Alright, so she is the queen bee and this is the baby. उसका नाम है Tina. Okay, तो and all the ये जो honey bees जो होते हैं ना, वो सब लोग बहुत काम करते हैं. All the honey bees are working all the time. Okay, they are very very hard working. So this little Tina goes to the mother bee, the queen bee, और उसको बोलती है, मम्मी I don't like to work, I don't like to do all this whatever the other bees are doing. ये जो बाकी सब जो मधुमक्खियाँ जो bees जो काम कर रही है, मुझे वो कोई काम नहीं करना है. I don't want to work. वो उसकी मम्मी बोलती है, अरे how can you not work? All your brothers and sisters, everyone is working all the time. How can I tell you not to work? तो वो बोलती है, You are the queen bee, right? आप queen हो. तो उसकी मम्मी बोलती है, Yes, I am the queen. So then I am your baby, तो I am a princess, right? Queen की baby princess हुई, right? तो उसकी मम्मी बोलती है, हाँ. So then तो वो बोलती है, अरे then how can a princess work? A princess can't work. Princess कभी काम थोड़ी करती है, princess कभी काम नहीं करती. उसकी मम्मी सोचने लगती है, अरे व्हाट इज शी सेइंग? अगर मैं इसको काम करने का मना कर दूं तो बाकी सब भी तो काम करना बंद कर देंगे, राइट? इफ आई टेल हर दैट इट्स ओके इफ शी डजंट वर्क, देन एवरीवन एल्स विल आल्सो स्टॉप वर्किंग, राइट? सो द क्वीन बी, उसको एक आइडिया आता है, राइट? शी स्टार्ट्स थिंकिंग एंड आइडिया. ओके, शी टेल्स टीना, Would you like to work? Would you like to clean the honeycomb? ये जो घर है ना, मधुमक्खी का जो घर है. So she says, Would you like to go and clean it? So then Tina says, Okay, I will try. मैं try करती हूँ, देखते हैं. Now what happens? Tina is not good at it. Okay, उसको वो काम जरा भी पसंद नहीं था करना, right? So the minute she would go up, climb up करती थी, साफ करते जैसे ही ऊपर पहुँचती, she would fall down again. See? Can you see? वो नीचे गिर जाती थी वापस, एंड उसके पैर में सब हनी चिपक जाता था. एंड देन शी डिडंट लाइक इट, शी डिडंट लाइक टू डू दैट वर्क, राइट? तो वो रोते रोते उसकी मम्मी के पास जाती है, मम्मा आई डोंट थिंक आई लाइक टू क्लीन द हनी को, मुझे क्लीनिंग पसंद नहीं है. तो देन सी हियर, सी, कैन यू सी? शी गोज टू हर मदर अगेन. I don't like to clean the honeycomb. I don't want to be a cleaner. So then उसकी मम्मी वापस सोचने लगती है. And again thinking and idea. Okay, then she tells the mother, the queen bee tells Tina, would you like to nurse the babies? मतलब क्या तुम जो babies हैं उसको खाना खिलाना पसंद करोगी? So then Tina says, okay, I can try. And there, see, can you see? See, she goes to feed the babies. Can you see these worms? ये जो worms है ना, वो baby bees है. जब bees जो honey bees हैं, वो जब भी babies होते हैं ना, तो वो ऐसे worms जैसे दिखते हैं. See? All right. अब इसमें टीना ने क्या किया पता है? टीना she would go to feed the baby bees, right? Okay. And वो क्या करती थी? आधे bees को खाना खिला देती थी 2-2 बार. And आधे bees को खाना खिलाना ही भूल जाती थी. And that would make the baby bees very angry and they would be very upset and they would start crying, Ma, Ma, Ma.
you see? Can you see? This is Tina. Okay, she is feeding this bee. लेकिन ये ऊपर नीचे वाले को भूल गई. Okay, so the queen bee becomes very upset. Tina, what are you doing? तो आप तुमने आधे बच्चों को खाना खिलाया, आधे बच्चों को नहीं खिलाया. ऐसे थोड़ी होता है, बेचारे आधे तो भूखे ही रह गए. So Tina says, but I don't know what to do. I tried my best. मैंने सब कुछ किया, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता कि किसे खिलाया और किसे नहीं खिलाया. I can't recollect. मुझे याद नहीं रहता. I can't remember I can't remember the bees that I fed and the bees that I didn't feed. तो वापस क्वीन बी सोचते again idea. And the queen bee says, okay Tina, you can go and work in the kitchen. Okay, आप किचन में जाके काम करो. Alright, अब किचन में ये जो बीज हैं वो क्या कर रहे थे पता है? ये जो हनी है ना, वो देखो इसमें हनी भर के they would seal it, मतलब इसको वैक्स से बंद कर देते हैं. Alright, that is the job of the kitchen at the kitchen. Okay, मतलब ये जो इनका हनी है, जो हनी बी का हनी है, जो शहद है, वो फिर बाहर नहीं गिरे. और फिर जब भी विंटर सीजन या कोई ऐसी सीजन आए जिसमें वो लोग बाहर नहीं जा सके, तो दे कैन eat from these. Okay, so see, this is the honey. Okay, and they are sealing it with, see, can you see this bees? देखो ये बीज क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर वैक्स लगा रहे हैं. ओके, वैक्स का एक कोटिंग लगा रहे हैं. ऑलराइट, जिससे कि हनी जो शहद है वो बाहर नहीं गिरे. ऑलराइट, सो टीना गोज टू द किचन. बट आपको क्या लगता है, टीना वहां पे काम कर लेती है? वापस वहां पे गड़बड़ कर देती है. अगेन यू नो व्हाट शी डज, पहले तो हनी होना चाहिए और उसके ऊपर वैक्स होना चाहिए, राइट, कवरिंग. तो वो क्या कर देती है, नीचे वैक्स ऊपर हनी. तो फिर हनी को क्या होगा, शहद को क्या होगा, सब गिरने लगेगा, राइट. सो सी, दिस इज व्हाट टीना डज. she puts the honey, she puts the wax नीचे और हनी ऊपर. एंड शी messes that up, वो भी काम बिगाड़ देती है. एंड वापस उसकी मम्मी के पास पहुंच जाती है. मम्मी, I couldn't even do that, she says. Okay, मम्मी को बोलती है, मम्मी मुझसे तो वो भी नहीं हुआ. अब मम्मी वापस सोचने लगती है, जो क्वीन भी होती है वो वापस सोचने लगती है, क्या करूं. एंड one more idea. She said, okay Tina, will you be the guardian bee? Guardian bee मतलब जो उनका जो हनी को, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे गार्डियन बीज होते हैं, मतलब जो उसकी रक्षा करते हैं. ऑलराइट, जो दूसरे इंसेक्ट्स को अंदर आने से रोकते हैं. ऑलराइट, सो टीना's mother, the queen bee, she says, do you want to be a guardian bee? So then Tina says, okay, I will try. And she goes to be the guardian bee. Okay, लेकिन उसको guardian bee, see, can you see, these are all the guardian bees. Okay, and this is the entry. Okay, and these are all the bees, and Tina has to guard this place. Okay, उसको उसकी रक्षा करनी है. लेकिन क्या टीना वो करती है? नहीं. टीना वहां पे दरवाजे पे जाके सो जाती है. एंड इतने में क्या होता है, एक बड़ा सा बटरफ्लाई, कैन यू सी दिस, एक बड़ा सा बटरफ्लाई अंदर घुस जाता है. एंड ऑल द बीज आर सो स्कैर्ड. ओह बटरफ्लाई, रन, वेयर इज टीना, व्हाट इज शी डूइंग? ये टीना ने इसको बचाया क्यों नहीं हमको, क्या कर रही है वो? बट डिड टीना नो कि अंदर बटरफ्लाई आ गया था? क्योंकि टीना क्या कर रही थी, टीना तो आराम से सो रही थी. एंड सी, कैन यू सी द बटरफ्लाई इज गोइंग इनसाइड. तो ये सब मधुमक्खियां जो है, जो हनी, जो बीज है, वो सब भागने लगते हैं, यहाँ से वहां से यहाँ. फाइनली वो लोग अपना बटरफ्लाई को बाहर निकाल देते हैं. राइट, नाउ द क्वीन बी इज वेरी अपसेट. वो बहुत गुस्सा हो जाती है. क्यों? क्योंकि आज बटरफ्लाई अंदर आ गया, अगर कल कुछ और आ गया तो, राइट, उनका जो छत्ता है, उनका जो हनी बी का जो हनी कॉम्ब है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था ना टीना को. राइट, टीना का काम क्या था, उधर जाके प्रोटेक्ट करना. लेकिन उसने क्या किया, वो तो सो गई. राइट, सो द क्वीन बी इज वेरी अपसेट. ओके, सो शी कॉल्स टीना.
टीना व्हाट हैव यू डन, तो मैंने तुमको वहां पे रक्षा, वहां पे गार्ड के हिसाब से रखा था, यू वर सपोज टू बी प्रोटेक्टिंग द अदर बीज, लेकिन तुम तो सो गई और बटरफ्लाई अंदर आ गया, शी इज वेरी वेरी अपसेट. So then Tina says, sorry mama, I will not do it again, I am very sorry. And then the queen bee, she says, go out of this house and निकल जाओ इस घर से. And what does she say? कि अभी तुम बाहर ही रहोगी, right? And टीना को बहुत दुख लग जाता है, right? Because the queen bee says you have to go out. जैसे ही टीना वो जो हनी कोम जो है अंदर से बाहर निकलती है तो उसको सब दिखता है, सच ब्यूटिफुल फ्लावर्स, सो मच ब्यूटी ऑल अराउंड, सब कितना सुंदर है, उसे इतना मजा आता है. एंड देन सी शी गोज एंड कलेक्ट्स द, व्हाट इज दिस बी डूइंग, वो फूल में से क्या ले रही है, शी कलेक्ट्स द हनी. ओके, शी स्टार्ट्स कलेक्टिंग हनी. अब हनी बी का काम क्या है, हनी कलेक्ट करना, राइट? तो ये जो टीना है, और क्वीन बी ने उसको नहीं बोला था, ओके, क्वीन बी ने तो उसको घर में से बाहर निकाल दिया था, लेकिन जैसे ही जो टीना है वो बाहर निकलती है, शी सीज ऑल दीज ब्यूटीफुल कलरफुल फ्लावर्स एंड व्हाट डज शी डू, शी गोज ऑन टू इट एंड शी टेक्स द हनी. ओके, ऑलराइट, सी दिस इज टीना. ये देखो टीना इसमें से हनी जो शहद है वो ले रही है फूल में से, राइट? सो द होल डे टीना कीप्स कलेक्टिंग हनी, कि पूरा दिन भर वो हनी कलेक्ट करती है. और उधर घर पे क्या होता है, जो क्वीन बी है अब उनका गुस्सा तो शांत हो गया है, राइट? एंड शी फील्स वेरी सॉरी कि अरे मैंने टीना को घर से बाहर निकाल दिया, यू नो शी स्टिल माई बेबी, आई कैन टेल हर टू लीव द हाउस. एंड शी इज वेटिंग एट द एंट्रेंस. वो एंट्रेंस पे राह देख रही है कि टीना शायद आ जाए. क्या टीना आती है? यस. एंड सी टीना comes with a whole lot of honey. इतना सारा हनी उसने कलेक्ट किया होता है. And she comes to queen bee. देखो, and Tina says, Mama, look, I got so much honey. देखो मैंने कितना सारा शहद जमा किया है. And the queen bee is very happy. She feels so proud. अरे वाह टीना, this is so good. You've collected so much honey. So इस तरह से टीना को उसको जो काम पसंद था वो मिल जाता है. नाउ एवरी डे इन द मॉर्निंग टीना वुड गो आउट, फ्लावर्स के ऊपर जाती एंड हनी कलेक्ट करके वापस आ जाती. एंड द क्वीन बी वाज आल्सो वेरी वेरी हैप्पी. शी वाज आल्सो वेरी हैप्पी दैट हर चाइल्ड, मतलब जो टीना है उसको उसका काम मिल गया. शी फाउंड समथिंग टू डू. ओके, ऑलराइट. So this was the story about Tina and the queen bee. Okay. Now, क्या आपको पता है कि ये जो हनी बी है, राइट, एक क्वीन बी होती है, राइट, एंड उसके थाउजेंड्स ऑफ बेबीज होते हैं, ऑलराइट. और एवरी बी, हर एक बी जो है उसका कुछ ना कुछ काम होता है. ओके, सी देयर आर सम बीज हु आर द हनी कलेक्टर्स, मतलब वो लोग बाहर जाते हैं और जो फूल होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं उसमें से हनी कलेक्ट करते हैं. ओके, देन देयर आर सम बीज हु आर द गार्डियंस मतलब जो हनी कॉम है, जो अपना मधुमक्खी का छत्ता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, देन देयर आर सम बीज हु आर द क्लीनर्स, मतलब वो पूरा हनी कॉम क्लीन रखते हैं. ओके, देन देयर आर सम बीज who seal the wax, seal the honey. जो टीना कर रही थी ना, हनी भर के ऊपर वैक्स लगाना. There are some bees who do that. Then there are some bees who feed and take care of the babies. Okay, जो बेबीज को खाना देते हैं और उसको अच्छी तरह से रखते हैं. जैसे हम हमारे घर में सब काम करते हैं ना, सफाई का काम करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं, बेबीज का ध्यान रखने का काम करते हैं, सेम वैसे ही जो हनी बीज होते हैं, जो मधुमक्खी होती है, वो सब इतना सारा काम करते हैं. और सब हर एक की ड्यूटीज डिवाइडेड होती है, मतलब हर कोई हनी बी कुछ ना कुछ काम करता ही है. ओके, सो देयर आर सो मेनी ड्यूटीज दैट दे डू, राइट. कितना सारा काम करते हैं, वो दिन भर काम करते हैं. ओके, सो अगेन आई टेल यू, सी देयर इज द हाउसकीपर बी. देयर इज अ हाउसकीपर बी. हाउसकीपर बी क्या करता है,
तो वो घर की सफाई करता है. ओके, देन देयर इज द नर्स बी. नर्स बी क्या करता है? नर्स बी जो बेबीज होते हैं उसको खाना देता है. ओके, देन देयर इज द गार्डियन बी. गार्डियन बी क्या करता है? तो जो हनीकॉम्ब है, जो मधुमक्खी का छत्ता है, उसको प्रोटेक्ट करता है. ओके, देन देयर इज द वैक्सिंग बीज. वैक्सिंग बीज क्या करते हैं? तो जो हनी कलेक्ट करते हैं ना, उसके ऊपर वैक्स से हनी को बंद कर देते हैं. ओके, एंड देन देयर आर द हनी कलेक्टर बीज. हनी कलेक्टर बीज क्या करते हैं? जो बाहर जाके फूलों से हनी कलेक्ट करके आते हैं. ऑलराइट, so many things these tiny things do, no, these tiny insects कितना सारा करते हैं, right? Okay, now आपको क्या करना है? आपको मुझे एक वीडियो भेजना है जिसमें मैंने जो हनी बी के काम बताए ना, ओके, वो मुझे आपको रिकॉर्ड करके भेजने हैं. ऑलराइट, सो यू हैव टू टेल मी अबाउट द गार्डियन बी, देन द नर्सिंग बी, देन द हाउसकीपर बी, देन द हनी कलेक्टर बी एंड द वैक्सिंग बी. ओके, वो सब क्या करते हैं वो आपको मुझे रिकॉर्ड करके भेजना है. ओके, बाय बाय.